बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 21st lecture of consumer psychology. So students, let us begin once again today with a brief description of what we discussed in our last lecture. Students, our last lecture with reference to culture measurement methods was a detailed discussion on 3 different methods that are frequently used by the marketeers to take a stock of what kind of cultural changes are going on in a particular section of society. And we discussed 3 different techniques for that. These included number 1, content analysis, number 2, consumer fieldwork, and number 3, a bit of measurements, value measurement surveys. We were talking about the value measurement surveys while we ended up with the time in our last lecture. So this time around in this lecture we would have a detailed discussion on the value measurement surveys as well. So let me give you a summary of what we discussed in our last lecture. Students, our last lecture started out with the discussion of content analysis, and we discussed that content analysis focuses upon the content of verbal, written, as well as pictorial communication that is prevalent within a particular culture and within a particular society. We talked about content analysis in greater detail with reference to different advertisements. And marketeers frequently use content analysis techniques to understand the growing patterns in a particular culture by studying different advertisements on the television as well as on magazines. And while they are studying different advertisements on television and magazines and other mediums as well, they are trying to understand that what is the content, the popular content that is being used in a particular advertisement. And we discussed that when we talk about advertisement of particular interest to the marketeers with reference to the particular words that are being spoken in the advertisement or the words that are being used in the written shape in a magazine advertisement or a newspaper advertisement are of exceeding importance to the marketeers. They try to understand the common language patterns that are particularly popular with a certain section of society or with a certain cultural group which constitutes the target segment for a particular product. Students, when we talk about content analysis of the television advertisements, we can decompose a television advertisement into 3 basic parts. These include number 1, the copy of the advertisement, I mean the kind of commentary that is going on to explain what is happening in the advertisement as well as to explain and describe different product categories or different product features that are to be highlighted by that particular advertisement. Of particular interest to the marketeers would be in a particular advertisement, the color of the clothes that people are wearing, the kind of clothes that people are wearing, and different dressing patterns that also become very important. Then there are relationship aspects that are shown by the characters within an advertisement. How people come to associate with each other, what kind of references they are using, and what are the different association patterns that they are using within a particular advertisement so that the characters could come to relate with each other more effectively with reference to the target culture within a target segment of the society. Students, at this point, let me tell you that what are those situations where using content analysis is of more importance. I mean, content analysis would bring in more valuable data for the marketeers so that they could come up to be making strategic decisions about their promotional and advertisement schemes. Usually, content analysis technique is used when marketeers are intending to study a particular section of society, which means that they are trying to draw different conclusions about the society, that how people within that society think, what are the important features of that society, what are the important beliefs, values, and customs within a particular society. Marketeers also use content analysis when they want to study specific aspects of a society. For example, they may be studying the teenager groups, and within teenager groups, what kind of behavioral patterns are more prevalent, what kind of sports are they playing, what kind of field of studies they are getting engaged into, what are their future career aspirations. All of these features of the teenager market become very important for the marketeers to study. Situation number 3, where content analysis would be bringing in more valuable data and more valuable information, is when marketeers try to compare 2 different societies. This is possible when marketeers are assigned the task of coming up with the promotional and advertisement strategy for
two different brands within the same product category. Now, one brand can be targeting the needs and desires and wishes of a particular socioeconomic category. For example, they could be people from the middle class socioeconomic category. Another brand within the same product category may be catering for the needs of the people who come from the lower socioeconomic category. So in this case, content analysis would be more helpful for the marketeers to understand that what are the differences of behavioral patterns between the two sections of society. On the other hand, sometimes marketers come across the gigantic task of launching a product within many cultures. That means an international product is being launched into many different countries. बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर एक ही प्रोडक्ट को जब लॉन्च करना होता है तो मार्केटर्स को ये स्टडी करना पड़ता है कि एक सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी से किस तरह से डिफ़र करती है, ताकि उनको बेहतर तरीके से ये अंदाज़ा हो सके कि एक एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन जो वो बना रहे हैं जो किसी एक सोसाइटी के अंदर पॉपुलर होगा, क्या इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, जो रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं, जो एग्जांपल्स यूज़ की गई हैं, जो वर्ड्स और लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो बॉडीली जेस्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं, क्या वो किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर उनका मतलब कुछ और तो नहीं लिया जाएगा, क्या उनका मतलब नेगेटिव तो नहीं लिया जाएगा किसी और सोसाइटी में. So marketeers come across situations where they have to compare two societies in order to understand their target consumers in better ways. Students, at this point, let me also tell you a little bit about the usage of the content analysis. Content analysis may be used as a relatively objective means of determining what social and cultural changes have occurred in a specific society. हमने कल्चर की डिस्कशन के अंदर बारहा इस बात को डिस्कस किया कि मुआशरा जो है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से कल्चर के अंदर भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही हैं. और मार्केटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सोशल और कल्चरल चेंजेस को मॉनिटर कर सकें और उनको स्टडी कर सकें, और इसके लिए वो डिफरेंट रिसर्च मेथड्स और डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कल्चर के अंदर जो भी चेंज पैदा हो रही है उसको कैप्चर कर सकें और उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा कर सकें. सक्सेसफुल मॉनिटरिंग ऑफ द कल्चर एंश्योर्स फॉर द मार्केटर्स दैट दे understand their target segment better, and based upon this understanding they could come up with advertisements that would be more effective. Students, content analysis, as we discussed before, can also be used to compare two different societies, and we have had a detailed discussion on this particular point, so I would not elaborate in summarizing this lecture upon this point once again. At this point, let me take you towards the consumer fieldwork also. कंज्यूमर फील्ड वर्क के बारे में बातचीत करते हुए मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर फील्ड वर्क का मतलब कुछ इस तरह से है कि रिसर्चर्स जो हैं वो किसी एक ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जाके स्टडी करते हैं. अब क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते तो दे ट्राई टू सेलेक्ट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनको वो जाके स्टडी करेंगे. इसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को उनके नेचुरल माहौल के अंदर जाके स्टडी करें. अगर उनको वो उनके नेचुरल माहौल से डिसलोकेट करते हैं एंड दे ब्रिंग देम इन एन आर्टिफिशियल सिचुएशन, तो लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में आकर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. सो मार्केट रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को सोसाइटी के अंदर जाकर स्टडी करें एंड दे ट्राई टू टेक अ स्टॉक ऑफ द people's behavioral patterns as those behavioral patterns are unfolding within the perspective of a certain society. So मार्केटियर्स फील्ड वर्क करने के लिए यूजुअली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाते हैं. दे गो देयर एंड दे ट्राई टू स्टडी पीपल एज दे आर बिहेविंग और एज दे आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ देयर सोसाइटल लाइफ. So students, based upon these observations, marketeers come to conclude certain points of views about a particular society. और उन पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए वो प्रमोशनल और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को कुछ इस तरह से टेलर करते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे मीनिंगफुल होंगे उस टारगेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जिसको मार्केट रिसर्चर्स ने इवेंचुअली स्टडी किया था. स्टूडेंट्स, देयर आर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर, और कंटेंट एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर फील्डवर्क जो है वो किसी भी कल्चर की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में बहुत मदद देता है. और इसके लिए ज़रूरी होता है कि रिसर्चर्स जो हैं एक नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर जाकर लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करें. सो अगर कंज्यूमर फील्डवर्क की बात की जाए तो आपके जहन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा से रहने चाहिए
कि कंज्यूमर फील्ड वर्क जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जाके कंडक्ट किया जाता है। कंज्यूमर फील्ड वर्क के लिए ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों को स्टडी किया जा रहा है उनको इस बारे में पता हो कि उनको स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर औक़ात होता है कुछ इस तरह से है कि जब लोगों को पता चलता है कि उनको स्टडी किया जा रहा है तो उनके बिहेवियर पैटर्न्स के अंदर चेंज आना शुरू हो जाती है और वो बिहेवियर पैटर्न्स यूजुअली आर्टिफिशियल बिहेवियर पैटर्न्स हो जाते हैं। सो कंज्यूमर फील्ड वर्क का एम्फेसिस हमेशा नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर होता है और लोगों के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर होता है, विच मीन्स के जब आप किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जाएं तो आपको लोगों को while they are performing certain acts, while they are busy in certain cultural activities, आपको उस वक्त उन लोगों को स्टडी करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप शादी के रसूम और रवाजात को स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये होगा कि आप किसी शादी के अंदर पार्टिसिपेट करें और उस फंक्शन को A to Z सारा गौर से देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें और फिर ये समझने की कोशिश करें कि मुख्तलिफ एक शादी के फंक्शन के अंदर जो मुख्तलिफ रिचुअल्स शामिल होते हैं उनकी क्या वजूहात हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के लिए, और लोग उन फंक्शंस के साथ, उन सेरेमनीज़ के साथ, उन रिचुअल्स और कस्टम्स के साथ किस तरह से एसोसिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए कितनी अहम हैं ताकि आप शादी के एक फंक्शन की स्पिरिट को समझ सकें एज द वे इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ विद इन द कल्चर और विद इन द सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर फील्ड वर्क की बात करते हुए हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स की भी बात की। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ इस तरह से है कि रिसर्चर्स जो हैं वो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जाके उस सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं और बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, जिससे उनको उस सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ बिहेवियर पैटर्न्स नमूदार हो रहे हैं उनको स्टडी करने का बेहतरीन मौका मिलता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि लोग जब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं तो किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं, वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं। अगर आप किसी से जाके ये पूछेंगे कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्यों खरीदते हैं तो हो सकता है वो शख्स आपको ये ना बता सके, लेकिन अगर आप एक सेल्स पर्सन बन के किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान पर एज अ सेल्स पर्सन खड़े हो जाते हैं वहाँ पे और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको कस्टमर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनाने को मिलेंगी। Through your interaction with the customers, people would come to you and they would have different requirements and they would have different demands with reference to different softwares that they require. और उन डिमांड्स को समझने का ये बेहतरीन मौका होगा आपके पास कि आप एज सेल्समैन किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शॉप के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं और उन लोगों के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यूजुअली जब कंज्यूमर फील्ड वर्क किया जाता है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जाती है तो किसी मुआशरे के बारे में बेहतर तौर पर जानना रिसर्चर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन वी हैव आल्सो बीन डिस्कसिंग कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लॉन्च किया जाता है और इस रेफरेंस से हमने एग्जांपल दी थी आपको एक इंटरनेशनल कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो अपना एक कार का सर्टन मॉडल लॉन्च करना चाहते थे इन अ वेस्टर्न कंट्री एज वेल एज इन अ फार ईस्टर्न कंट्री। फॉर दीज रिसर्चर्स इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज के व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ luxury for the people in the Western countries and what is the meaning of luxury for the people in the Far Eastern countries, so that they could come up with effective advertisement strategy in both of these countries. Eventually, after their painstaking research, they found out कि luxury का मतलब जो Western countries के अंदर लिया जाता है, that is visible opulence, which means that things should be gorgeous, they should be beautiful, they should be very, very elaborate. However, in the Far Eastern countries, the meaning of the very notion of luxury means simplicity. जितनी चीज़ें सिंपल होंगी उतनी ही luxurious होंगी क्योंकि उनका इस्तेमाल करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा. So when the researchers found out that the particular word luxury means two entirely different notions in the Far Eastern countries and in the Western countries, they were able to capture the meaning and they were able to capture the meaning of luxury in the design as well as features included into this car. So
this research helped the researchers finding out the meaning of luxury with reference to two different cultures which were entirely different from each other. Students, यहाँ पर हमने बात की थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं किसी कल्चर को स्टडी करने के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं किसी कल्चर को स्टडी करने के लिए. क्वालिटेटिव टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कंज्यूमर रिसर्च के लेक्चर में काफ़ी डिटेल में, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटा सा रेफरेंस देता जाऊँ कि फोकस ग्रुप डिस्कशंस अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी कल्चर के पैटर्न को अनफोल्ड करने के लिए और किसी भी कल्चर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए. बाज़ औक़ात किसी माशरे के अंदर नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे होते हैं और उन नए ट्रेंड्स को एज दोज आर इमर्जिंग अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि माशरे के लोग भी जो हैं वो उस वक्त एक चेंज के प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, सो दे आर नॉट एक्सट्रीमली श्योर अबाउट इट. At these times, focus group discussions are the techniques that can be effectively used, और focus group discussion के अंदर मुख्तलिफ projective techniques भी इस्तेमाल की जा सकती हैं to help the participants find out that what exactly is the meaning of a particular emerging trend for them. So focus group discussions जो हैं वो extensively use की जाती हैं किसी भी emerging trend को एक ख़ास culture के अंदर study करने के लिए. Focus group discussions जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, और जिन मार्केटिंग प्रोग्राम्स के अंदर बेसिक मकसद ये हो कि कंज्यूमर लॉयल्टी को किस तरह से ज़्यादा रीइंफोर्स किया जा सकता है. हमने प्रीसीडिंग चैप्टर्स में ये डिस्कस किया था कि कंज्यूमर लॉयल्टी जो है उसको जब मार्केटियर्स टारगेट करते हैं तो यूजुअली दे ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कौन से कंज्यूमर हैं जो मैक्सिमम रेवेन्यू किसी कंपनी को देते हैं, और जब वो आइडेंटिफाई करते हैं उन कंज्यूमर्स को जो किसी कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू देते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो मुख्तलिफ तरीके समझ सकें जिसके ज़रिए वो कंज्यूमर लॉयल्टी को रीइंफोर्स कर सकते हैं. फोकस ग्रुप डिस्कशन से अमूमन ये पता चलता है कि वो कंज्यूमर्स जो किसी कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू देते हैं दे वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज द प्रेशियस कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनी, और ये रिकग्निशन की नौयत क्या होगी, किस किस्म के गिफ्ट्स और किस किस्म की प्रमोशनल स्कीम्स डिज़ाइन करनी चाहिए इन बेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी के लिए. तो इस किस्म की स्टडी करने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर जो है वो टारगेट कंज्यूमर से डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स वुड यू अप्रिशिएट मोर. सो स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड द वैल्यू मेजरमेंट सर्विस. वैल्यू मेजरमेंट सर्विस के नाम से आपको अंदाज़ा होगा कि वैल्यू मेजरमेंट सर्विस इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी कल्चर के अंदर डोमिनेंट वैल्यूज़ को स्टडी करने के लिए. और कल्चर की डेफिनेशन के दौरान हमने ये देखा था कि कल्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं किसी भी कल्चर के कस्टम्स, किसी भी कल्चर में लोगों के वैल्यूज़ और किसी भी कल्चर में लोगों के बिलीव्स जो डोमिनेंट बिलीव्स हैं. तो मार्केटियर्स के लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी कल्चर में लोगों की क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं. वैल्यूज़ के बारे में हमने बात करते हुए कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि वैल्यूज़ लोगों के वो बिलीव्स होते हैं जो जिनकी बड़ी डायरेक्टिव नेचर होती है. और वैल्यूज़ के हिसाब से हम मुख्तलिफ बिहेवियरल पैटर्न्स के सही होने की और गलत होने की तस्दीक करते हैं. वैल्यूज़ वो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो किसी भी कल्चर के अंदर अप्रोप्रिएट कंसिडर किए जाते हैं, और वैल्यूज़ जो हैं ये दीज आर फेयरली स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वैल्यूज़ डोंट चेंज दैट ईजीली. वैल्यूज़ को चेंज होने में बहुत वक्त लगता है, और यूजुअली किसी भी माशरे की वैल्यूज़ जो हैं वो उस माशरे की बुनियादी तौर पर अक्कासी कर रही होती हैं. सो वैल्यूज़ आर एक्सट्रीमली डायरेक्शनल एंड डायरेक्टिव इन नेचर. नाउ वैल्यूज़ को कैसे स्टडी किया जा सकता है? वैल्यूज़ को स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो एक यूजुअली जो मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ फील्ड ऑब्जर्वेशंस, कंज्यूमर फील्ड वर्क या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस. इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मार्केट रिसर्चर्स जो हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं एंड आवर डिस्कशन शुड बी विद रेफरेंस टू द मार्केट रिसर्चर्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग देयर टारगेट कंज्यूमर्स. सो मार्केट रिसर्चर्स जब भी किसी कल्चर का वैल्यू सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो दे मेक देयर field observations and their participant observations, which means that they go and live with certain sections of society, with certain people, or they become part of that particular society and they start interacting with the people so that they could take a stock of what are the dominant values within a culture.
यूजुअली रिसर्चर्स होते हैं जब किसी भी कल्चर के वैल्यू सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो वैल्यूज़ को लोगों के बिहेवियरल पैटर्न के हिसाब से इन्फर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा आपने पंक्चुअल रहना है और आपने डिसिप्लिन्ड रहना है, तो इसके लिए मुख्तलिफ बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे। पेरेंट्स वुड बी एम्फसाइजिंग अपॉन द किड्स दैट दे शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो दैट दे कुड गेट रेडी to go to school in time so that they could reach to the school in time. और इन behavioral patterns से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि people within this particular culture are particular about the value of discipline, the value of punctuality. So consumer field work और field observations और participant observations किसी भी माशरे के value system को study करने में बहुत मदद देते हैं। However, market researchers have started using a new technique which is called value measurement surveys. Value measurement surveys के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सर्वेस जब हम स्टडी कर रहे थे तो सर्वेस के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि सर्वे के अंदर किसी भी माशरे के पर्टिकुलर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को आराम से स्टडी किया जा सकता है। और सर्वे यूजुअली सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज होती हैं जिसके अंदर बिहेवियरल पैटर्न्स की एक लिस्ट जो है वो लिखती जाती है या वो उनका शुमार कर दिया जाता है और उस माशरे के लोगों से पूछा जाता है कि उनके इन पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न्स की तरफ क्या रुझानात हैं। और सर्वेस की टेक्निक्स के रेफरेंस से हमने मुख्तलिफ किस्म के सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज भी स्टडी की थी और हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी माशरे के लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स को जानने के लिए। सो वैल्यू मेजरमेंट सर्वेज ऐसे सर्वे होते हैं जिनके अंदर किसी भी माशरे की डोमिनेंट वैल्यूज़ को डिलीनिएट किया जाता है, उनका शुमार किया जाता है और फिर लोगों से जाकर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इन वैल्यू सिस्टम्स में से कौन से वैल्यूज़ हैं जो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कौन से वैल्यूज़ डू यू कंसिडर आर पॉजिटिव, कौन से वैल्यूज़ डू यू कंसिडर आर मोर डोमिनेंट, आर मोर पावरफुल। सो वैल्यू मेजरमेंट सर्वेज जो हैं वो मार्केटियर्स को फैसिलिटेट करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू सिस्टम दैट इज प्रेवलेंट विद इन अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू आस्क पीपल हाउ दे फील अबाउट सच बेसिक पर्सनल एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स एज फ्रीडम, comfort and national security as well as peace. So many different kinds of subjects could be studied through the value measurement surveys. Students, value measurement surveys की जब हम बात करते हैं तो usually 3 तरह के value measurement instruments जो हैं वो काफ़ी popular हैं market researchers के साथ। इन 3 value measurement instruments के नाम हैं number 1 Rockich value survey, number 2 list of values and number 3 values and lifestyles। हम इन तीनों में से 2 सिस्टम्स को अपने इस लेक्चर के अंदर ब्रीफली रिव्यू करेंगे और इनको देखेंगे कि ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये किन हालात में यूज़ किए जाते हैं और इनकी नेचर क्या है। रॉकेच सर्वे जो है उसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं या आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आप वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे। नेचुरली आपको मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करने पड़ेंगे सो दैट यू कुड क्वालिफाई टू बिकम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड देन यू विल हैव टू क्वालिफाई योर मेडिकल एग्जाम्स सो दैट यू कुड बिकम अ डॉक्टर। सो किसी भी इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं those are the objective values for that particular individual, that I am going to become a doctor, that I am going to be a very nice person within the social environments, that I am always going to speak the truth. There could be many different goals with reference to the value system for the people. और उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी लोगों के पास कुछ मज़ीद वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। सो अगर आप इन वैल्यूज़ को गौर से देखें तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो गोल्स के तौर पर ली जा सकती हैं, वी कुड कॉल देम टर्मिनल वैल्यूज़, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो हमें उन गोल्स तक पहुंचने में मदद देते हैं एंड वी कुड कॉल देम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। रॉकेच सर्वे के अंदर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को डिलीनिएट किया जाता है और टर्मिनल वैल्यूज़ को डिलीनिएट किया जाता है। टर्मिनल वैल्यूज़ वो गोल्स हैं जो लोग जिन गोल्स को लोग अचीव करना चाहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वो गोल्स, वो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं।
सो रॉकेज सर्वे जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. टर्मिनल वैल्यू आइटम्स आर डिजाइन टू मेजर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एंड स्टेट्स ऑफ एक्सिस्टेंस और पर्सनल गोल्स. Now let me give you a fairly good idea of what these 18 terminal values include. These 18 terminal values include, number one, personal goals or end states. Number one, it includes a comfortable, prosperous life. Number two, an exciting life, for example, stimulating, active life. Number three, a world at peace, free of war and conflict. Number four, equality, which means brotherhood, equal opportunities for all of the people. Then there comes freedom, which means independence and free choice. Then comes happiness. Then comes national security, protection from attacks. Then comes pleasure and enjoyable life. And then comes salvation. We are then going to include in the terminal values things like social recognition. Students, these are the instrumental values that people might acquire and tailor their behavior according to these values in order to reach certain terminal goals. लोग अपने बिहेवियर को टेलर कर सकते हैं इन 18 वैल्यूज़ के रेफरेंस से. जब हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ का मतलब कुछ इस तरह से है कि जस्ट लाइक they play the role of an instrument in catapulting the behavior of a certain individual into certain direction. And what is that direction? That direction is a certain value goal which is included into the terminal values. So the relationship between instrumental values and the terminal values is more of antecedent and precedent. Antecedent are the instrumental values and precedents are the terminal values. Usually antecedents are worked out with rigorously in order to reach to certain antecedents which are the final end goals that an individual wants to reach over to. Students, Rockish Value Survey को इस्तेमाल किया गया था एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो ब्राज़ीलियन एडल्ट्स के ऊपर कंडक्ट की गई थी. ये रिसर्च इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा ताकि आप इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ और टर्मिनल वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें. रॉकेज सर्वे को इस्तेमाल किया गया था ब्राज़ीलियन एडल्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए 6 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर with reference to the particular values that were near and dear to those 6 groups. We would not talk about those 6 groups, but we would talk about 2 groups over here to give you a better idea in a very brief fashion how the Rockish Value Survey was used to study the adult Brazilians. एक सेगमेंट जो एडल्ट ब्राज़ीलियंस की कैटेगराइज की गई उनका कुछ वैल्यू सिस्टम जो था वो इस तरह से था. They were most concerned with number 1, world peace, इनर हार्मनी एंड ट्रू फ्रेंडशिप. ये 3 वैल्यूज जो थी ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो अपना बिहेवियल पैटर्न इसी तरह से डिज़ाइन करते थे कि इन वैल्यूज़ तक पहुंच सकें और ये बिहेवियल पैटर्न जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उनको यूफेमाइज कर सकें और उनको एक्ट आउट कर सकें. गौर करने वाली बात यह है कि ये एडल्ट ब्राज़ीलियंस जो थे इनके प्रोफेशंस क्या थे और ये किस किस्म के काम काज के अंदर मसरूफ़ रहते थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए. These members were involved in domestic-oriented activities such as gardening, breeding, going out with family to visit relatives. You could imagine that these were simple folks जिनके लिए life is beautiful in its simplicity. They want to have some time end of the day to spend with their family. They want to still see that all those small little things in life that add to the beauty are very important for them. जिसकी वजह से उनके लिए इस किस्म के बिहेवियर पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट थे कि वो फैमिली के साथ कितना टाइम गुजारते हैं, फैमिली के साथ किस तरह से मूव करते हैं. उनकी ज़िंदगी जो थी वो फैमिली के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी और दोस्तों के साथ खुशकपियाँ लगाना, दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहना, गार्डनिंग के पेशे से इनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ था. सो दीज वर सिंपल फोक्स जो सिंपल लाइफ गुजार रहे थे और इनके लिए जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ थी वो थी वर्ल्ड पीस, इनर हार्मनी एज वेल एज ट्रू फ्रेंडशिप. क्योंकि ये लोग कम मटेरियलिस्टिक थे और इनका एटीट्यूड जो था वो हेडोनिस्टिक नहीं था. हेडोनिस्टिक एटीट्यूड से मतलब है प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड. प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड इज मोर लाइक दैट एन इंडिविजुअल इज ड्रिवन by the basic objective of achieving all the luxuries in life by spending more money. For such individuals, earning more money and purchasing the luxuries of life is something very very important for them. और ऐसे individuals के लिए usually family के साथ time गुजारना और simple life की चीज़ों के अंदर वक्त गुजारना और life की simplicity के अंदर beauty तलाश करने से ज़्यादा कुछ चीज़ें important होती हैं. Now, the second category that was included into the study was exactly
the people who we have just described. इन लोगों के लिए जो important values थी, those were number 1 self-respect, number 2 comfort in life, number 3 pleasure. जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, विच मीन्स दैट दे वर able to visualize everything with reference to their self, as if their self was the center of their universe and everything revolved around their self. So their self-respect was very, very important for them. And similar was the case with reference to the self-preservation. They were extremely self-preserving in their activities. And they usually would like to see that end of the day, it is their self that is getting the maximum pleasure, that is getting the maximum comfort out of all that they have done throughout the day. Comfort in life was also very important for these people because they would work hard to purchase their luxuries. So end of the day, they would want to achieve comfort out of the different gadgetries and different instruments that they could purchase from the money that they have earned through their hard work. Pleasure for these people meant exciting life, which meant traveling to different places, which meant sports, which meant a sense of social accomplishment, which meant a sense of social recognition as well. So students, you could see that for the second group, what was important with reference to the values was strikingly different from the values that were near and dear to the people which were included into the group number 1. The self-centered, achievement-oriented pleasure seekers were expected to prefer provocative clothes in the latest fashion to enjoy an active lifestyle and be more likely to use the new products. Naturally, these were the people who could be the target of any products manufacturing company. They would like to concentrate upon them because these are the people who would come up with different desires, needs and wishes with reference to different product features as well as designs of the products. Simultaneously, these people, out of their hard-working attitude and out of their attitude to make more money, had the buying power to purchase different products. So these people became the target segmentation for the marketeers who were trying to market their different products within the Brazilian adult community. Students, at this point, let me take you towards the next survey that is used to study the values. This survey is called List of Values Scale. List of Value Scales is designed to survey consumers' personal values. Usually इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि consumers को एक list of values दी जाती है जो अमूमन 9 values होती हैं, which are also based upon the Rockies Value Survey. और consumer से ये पूछा जाता है कि इन 9 values में से सबसे ज़्यादा important values आपके लिए क्या है. मिसाल के तौर पर consumers ये कह सकते हैं कि the 3 important values for them may be warm relationship with others, a sense of belonging, or a sense of accomplishment. So, based upon the Rockies terminal values, 9 different values are included into this survey, and the respondents are asked to point out that which 2 values are more important for them. Students, this was a brief reference to the list of values scale. Now let us move forward to the next topic that becomes very relevant and pertinent for us to study when we are talking about culture. The next topic, of course, is subculture. Subculture consists of people who are similar with reference to certain demographical factors, which means they might be coming from the similar ethnic background. They might be practicing certain customs that are common to a certain subgroup of the people who are included into the larger group of that particular culture. So subculture के अंदर हम include करते हैं छोटे छोटे groups को जो जिनके अंदर वो सारी similarities होती हैं जो उस cultural group के अंदर शामिल होने वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इन लोगों के अंदर कुछ और characteristics होती हैं जो उनको थोड़ा सा basic culture से नुमाया कर देती हैं. और इन लोगों की तादाद क्योंकि ज़रा ज़्यादा होती है इसलिए वो एक छोटी सी कल्चरल पॉकेट विद इन अ कल्चर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड द सब कल्चरल ग्रुप. मार्केटियर्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सब कल्चरल ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करें और अपने टारगेट कंज्यूमर्स को सेगमेंट कर सकें विद रेफरेंस टू द सब कल्चरल ग्रुप्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, जब हम कल्चर की डिस्कशन कर रहे थे तो हमारी डिस्कशन विद रेफरेंस टू कस्टम्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे थी. हम एक लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे जिसके ऊपर कल्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुहित होता है. लेकिन जब हम सब कल्चर की डिस्कशन करेंगे तो क्योंकि हम विद इन द कल्चर कुछ ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जिनके पास सारे जिनके अंदर वो सारी बुनियादी
खसूसियात मौजूद हैं जो उस कल्चर में शामिल होने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ दूसरी खसूसियात भी हैं जो उनको नुमाया करती हैं उस बेसिक कल्चर से। तो नेचुरली हमारी डिस्कशन जो है उसका फोकस जो है वो कुछ नैरो हो जाएगा, क्योंकि हम एक बड़े नैरो स्केल के ऊपर जाके वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कल्चर। So within the subculture, what are the customs, values and belief that are important to the people? ये चीज़ें मार्केटियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो सब कल्चर को भी सेगमेंट कर सकते हैं और सब कल्चरल ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो उनको मार्केट करने की ज़रूरत पेश आती है। So students, what is subculture? How subculture is defined? Let me take you to the slide for that. Subculture is defined as a distinct cultural group that exists as an identifiable segment within a larger, more complex society. The members of a specific subculture possess beliefs, values, and customs that set them apart from other members of the same society. In addition, they adhere to the most of the dominant cultural values and behavioral patterns of the larger society. So students, अगर हम कल्चर और सब कल्चर की डिस्कशन करते हैं अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी बुनियादी तौर पर क्या है? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल, और लोगों को हम जब ग्रुप करते हैं टुगेदर तो हम लोगों के बिहेवियल पैटर्न्स के हिसाब से उनको ग्रुप करते हैं, उनके बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स के हिसाब से उनको ग्रुप करते हैं। तो इन अ वे culture becomes the personality of a society. This is the way the culture of that particular segment of society appears to the researchers or appears to the people who come from a different culture. Let me take you to the slide for a better explanation for that. Society consists of two kinds of groups. Number one is unique beliefs and values and customs of subcultural groups, and number two, central core cultural themes shared by most of the subcultures. So, एक society के अंदर बहुत सारे subcultural groups exist कर सकते हैं, और वो बहुत सारे सब कल्चरल ग्रुप्स जो हैं उनके जो वैल्यू सिस्टम हैं, उनके कस्टम्स और बिलीफ्स जो हैं वो ऑन द लार्जर स्केल जाकर एक होलिस्टिक कल्चर को जन्म देते हैं। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्टडी ऑफ द कल्चर इज दैट व्हेन वी आर स्टडीइंग द मेन कल्चर ऑफ अ टारगेट सेगमेंट, देन वी आल्सो हैव टू पे कंसिडरेशन एंड अटेंशन टू द सब कल्चरल ग्रुप्स दैट आर इंक्लूडेड विद इन दैट कल्चरल फ्रेमवर्क। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 सूबों के अंदर। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान। सो पाकिस्तान का बेसिक कल्चर क्या है? As you can see on the slide, there are 2 circles on the slide. One circle represents NWFP and Punjab, and the other circle represents Sindh and Balochistan. Naturally, people have different kinds of cultural patterns, different kinds of cultural norms with reference to being people belonging to the province of Punjab, with reference to being people belonging to the province of NWFP, Sindh, as well as Balochistan. However, both of these circles overlap in a certain area, and this overlapping area actually represents the society profile of the Pakistani people. मिसाल के तौर पर अगर हम रीजनल गेम्स की बात करें तो हम सपोज अगर हम क्रिकेट मैचेस की बात करते हैं तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन द क्रिकेट टीम्स ऑफ लाहौर एंड कराची आर कंटेस्टिंग विद ईच अदर। देयर इज अ मैच बिटवीन द टीम्स ऑफ say Peshawar and the teams of Quetta. Then there is a lot of excitement that is shown by the spectators who are watching these matches, and spectators are supporting their players individually and equally. अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच किसी और मुल्क की क्रिकेट टीम के साथ हो रहा हो तो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर ये फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स हैं, दे कुड बी कमिंग फ्रॉम NWFP, दे कुड बी कमिंग फ्रॉम सिंध, बलोचिस्तान, दे कुड कम फ्रॉम एनी प्रोविंस, बट दे वुड नेचुरली बी सपोर्टिंग द पाकिस्तानी टीम. Now that Pakistani spectatorship is actually the Pakistani society. That is the profile of the Pakistani society. So students, I hope you would have understood the difference between the subculture and the larger culture, and how the subcultural groups actually constitute to form and shape the larger culture on the whole. अब अगर हम सब कल्चर की इस डिस्कशन के रेफरेंस से बात करें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को बहुत सारी डायमेंशंस के ऊपर देखा जा सकता है.
मिसाल के तौर पर एक 18 साल पाकिस्तानी नौजवान को अगर हम देखें विद रेफरेंस टू हिज प्रोफाइल ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर, तो हम उसके प्रोफाइल को कितनी डायमेंशंस के ऊपर देख सकते हैं. लेट मी टेक यू टू द स्लाइड फॉर दैट. This 18 years old young man could be a student of engineering. So he is practicing certain values that he has learned from the practicing of the profession of engineering or from studying the engineering profession. This gentleman might be a Muslim, and being a Muslim, he's practicing certain value system. This gentleman then might be coming from the middle class community, and he might be professing into certain values that are near and dear to the people who belong to the middle class. Then this gentleman might be coming from Lahore, from the city of Lahore. Now, the very fact that he comes from the city of Lahore means that there are certain cultural values that are near and dear to him. There is a certain kind of character profile that we could attribute to him for the fact of being Lahori. Then this gentleman happens to be a Pakistani. So, students, you have seen that an 18 years old young man can be categorized with reference to his main cultural group that he comes from and with reference to different subcultural groups that he comes from. और एक consumer को हम मुख्तलिफ dimensions के ऊपर with reference to their subcultural membership देख सकते हैं. Now, why do we do subcultural analysis? Marketeers के लिए subcultural analysis क्यों important होता है? सब कल्चरल एनालिसिस मार्केटियर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सब कल्चरल एनालिसिस प्रोवाइड्स देम विद द फैसिलिटी टू लुक एट द टारगेट कंज्यूमर्स विद वेरी नैरो स्पेसिफिकेशंस. और अगर मार्केटियर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को उसकी नैरो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देख सकते हैं, दैट दे कुड ईजिली आइडेंटिफाई अ वेरी डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ सेगमेंट जिसके हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो मार्केटियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो डिटरमिन कर सकें कि क्या वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम्स हैं जो पॉपुलर हैं विद रेफरेंस टू अ सर्टेन सब कल्चरल ग्रुप. सो अगर हम सब कल्चरल कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो सब कल्चरल कैटेगरीज़ के अंदर मुख्तलिफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को डिफाइन किया जा सकता है. लेट मी टेक यू टुवर्ड्स अ स्लाइड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सब कल्चरल कैटेगरीज़. दीज इंक्लूड nationality, for example, a gentleman might be Pakistani, Afghani or Irani. Religion, he or she might be a Hindu, Muslim or Christian, etc. Geographic region, he might be coming from any of the 4 provinces of the country. Age, we can categorize him with reference to age. He could be teenager, he could be just a kid, he could be an elderly person or a senior citizen. Then we could categorize them with reference to gender. The target consumers could be categorized with reference to males and females. Then they could be categorized with reference to their occupation as well as their social class. So all of these variables are very important for the marketeers to understand because all of these variables constitute certain subcultural groups. And when marketeers are designing their target marketing strategies, then they need to understand that what are the cultural beliefs, values and customs which are popular with a particular subcultural group. Students, आइए इन फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स को ब्रीफली स्टडी करते हैं. द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड सब कल्चर बेस्ड अपॉन नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी. स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी बाहर के मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ हो, एंड लेट मी सपोज दैट यू वुड हैव विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर आप अमेरिका जाते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और सपोज यू हैव लैंडेड इन न्यूयॉर्क एंड यू कम इनटू द सिटी, you certainly find yourself in an entirely different culture where things are so topsy-turvy for you to understand them and so different that it becomes kind of very confusing for yourself. Eventually, when you start spending some time in New York and you start getting your bearing, you start understanding that which place is where and how to operate and behave in this particular society, इस society के cultural norms क्या हैं, तो आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस कल्चर के अंदर एसिमिलेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड इवेंचुअली यू कम अक्रॉस द पाकिस्तानी पीपल. Suddenly you would find yourself at home. You would be excited, you would feel very satisfied and content just at seeing the Pakistani friends. Because जैसे ही आप पाकिस्तानी दोस्तों के पास जाएंगे, you would immediately feel at home. You would immediately start feeling by yourself because those Pakistanis would be practicing the same cultural values that are important, near and dear to you. So, subcultural groups जो हैं वो nationality के हिसाब से भी बनाए जा सकते हैं.
Now, United States of America is a kind of country जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग आकर रहते हैं और रोज़गार की तलाश करते हैं. इससे अगर आप पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर आएँ तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, डिफरेंट एम्बेसीज हैं, एंड यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली कम टू लिव इन इस्लामाबाद फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज. And once you start get to interact with these people, you would find out that there are small little communities of people who come from many different countries. Now, marketeers के लिए इन communities को understand करना क्यों important होता है? Because each of these communities represents certain needs with reference to their with reference to the kind of products that they require, जो उनकी nationality की वजह से वो needs उनके लिए ज़्यादा important होती हैं. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर एक पाकिस्तानी न्यूयॉर्क जाता है तो जब वो पाकिस्तानियों के पास आता है तो ही स्टार्ट्स फीलिंग कंफर्टेबल. अब पाकिस्तानी कल्चर के अंदर आप मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. मिसाल के तौर पर रमज़ान में रोज़े रखते हैं, ईद के त्यौहार आते हैं, लोगों के एक दूसरे से मिलने जुलने के मुख्तलिफ रसूम व रवाजात हैं, शादी के मुख्तलिफ तरीके हैं. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट गिव यू अ सेंस ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी. एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ amongst a Pakistani group of people in New York, you would certainly start feeling home for once. और पाकिस्तानी लोग अगर न्यूयॉर्क के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं तो उनकी being पाकिस्तानी certain product needs हैं जो fulfill करनी चाहिए. And marketeers can come to understand that, say, there is a substantial amount of Pakistani, a large number of Pakistani people living in a certain area in New York. Then they would try to concentrate that what kind of products do they want to purchase. मिसाल के तौर पर आपको न्यूयॉर्क में अगर ईद का त्यौहार मनाना पड़े तो हो सकता है कि आप ईद के त्यौहार पे शलवार कमीज़ पहनना चाहें वहाँ पर, या अगर आपको ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाना पड़ता है तो आप ईद के वक्त वहाँ पर कुर्बानी देना चाहेंगे. Now all of the Muslims living within the New York, they might be having certain number of Muslims who would want to go through this ritual of sacrifice. So where are they going to get the items or the artifacts to perform that particular ritual? So marketeers के लिए understand करना बहुत ज़रूरी होता है कि nationality की basis के ऊपर जो सब cultural groups पाए जाते हैं किसी एक geographical locations के अंदर, एक location के अंदर, उनकी क्या distinct needs हैं, उनकी क्या desires हैं, ताकि उन distinct needs और desires को equally fulfill किया जा सके. Students, nationality subcultural groups क्यों emerge होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है? Let me take you to a slide to show you these benefits. Nationality and ethnic subcultures develop in order to serve their members in three ways. Number one, to develop a source of psychological group identification. Number two, to offer a pattern network of groups and institutions supportive of the subculture. And number three, to serve as a frame of reference through which to evaluate the dominant culture. So students, you would have seen that nationality subcultural groups are emerged because they help people survive in better ways in different locations. और nationality subcultures के हिसाब से लोगों की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं. And marketeers need to identify that they are going to have to categorize their target segments of consumers with reference to their nationality subcultures also. Students, आइए अब चलते हैं subcultural groups with reference to age. एज के हिसाब से अगर बात की जाए तो इट इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड कि एज के हिसाब से लोगों की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरियात जो हैं वो चेंज होती जाती हैं. क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या प्रोडक्ट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो एज के हिसाब से चेंज होती जाती हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम सोचें टोडलर्स के बारे में जो भी स्कूल गोइंग नहीं है, दे आर वेरी लिटिल किड्स, बेबीज़, तो उनके लिए ज़्यादातर ख़रीदारी कौन करते हैं? उनके पेरेंट्स उनके लिए ज़्यादातर ख़रीदारी करते हैं. और मार्केटियर्स जो हैं टोडलर्स के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो उसकी अपनी प्रमोशनल और एडवर्टाइजमेंट स्कीम्स को टारगेट करते हैं टुवर्ड्स द पीपल हु आर एक्चुअली इन अ पोजीशन टू सपोर्ट दोस बेबीज़, हु आर एक्चुअली इन अ पोजीशन टू हेल्प दोस बेबीज़ ग्रो अप. एंड दीज आर देयर पेरेंट्स एंड दीज आर द एल्डर सीनियर सिटीजन्स जिनके वो ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स हो सकते हैं. टोडलर से बड़े होते हैं तो वो स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं और स्कूल गोइंग एज के अंदर उनकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्स होना शुरू हो जाती हैं और चेंज होना शुरू हो जाती हैं. इवेंचुअली दी स्कूल गोइंग किड्स ग्रो अप अ लिटिल मोर और उनके पास थोड़ी सी बाइंग पावर भी आ जाती है. दे स्टार्ट गेटिंग पॉकेट मनी फ्रॉम देयर होम्स and at this time marketeers try to understand that how could they come up with different products that these kids can purchase out of their own money because they have certain financial independence with themselves.
Then these kids grow up and you could imagine that teenagers जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक बहुत साइजेबल मार्केट है जिसको बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट किया जाता है। टीनेजर मार्केट जो है इसके पास बाइंग पावर भी ज़्यादा हो जाती है और टीनेजर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा होता है और मार्केटियर्स अमूमन स्पेशलाइज करते हैं टीनेजर्स को स्टडी करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में और अपनी प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन और फीचर्स उसी हिसाब से बनाने में। इवेंचुअली पीपल ग्रो अप मोर एंड दे बिकम एडल्ट्स, दे बिकम मिडल एजड पीपल। ये वो ज़माना होता है जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है। These are the people who not only have the buying power, but they have the buying decision with themselves as well. And these people, as they grow up, they become old age senior citizens. तो senior citizens की क्या product requirements होती हैं और वो किस किस्म की चीज़ें खरीदते हैं, all of these age subcultural groups become very important for the marketeers to understand. इनके behavioral patterns क्या हैं, इनके customs क्या हैं, इनकी ज़रूरियात क्या हैं और इन ज़रूरियात की बेसिस पे ये एज ग्रुप्स जो हैं ये डिफरेंट सब कल्चरल ग्रुप्स की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और मार्केटियर्स इनको स्टडी करते हैं ताकि उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जा सकें और प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले लेक्चर में एज ग्रुप को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अमेरिकन्स किस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स को स्टडी करते हैं और किस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं। ये एग्जांपल एज ग्रुप के हिसाब से पर्टिनेंट होगी क्योंकि अमेरिकन्स अपने एज ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं विद रेफरेंस टू बेबी बूमर्स, विद रेफरेंस टू जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई। And once we study these categories, we can easily come to see these categories in Pakistan also. और हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इन generations के हिसाब से लोग किस तरह से सोचते हैं। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है स्टूडेंट्स। I hope you would have enjoyed the lecture. मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।